लोग है ना ओवरनाइट रिच बनना चाहते हैं। लोग वेल्थ बिल्ड करना नहीं जानते। लेस देन 25% इन इंडिया, पीपल इन इंडिया आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव द यूथ कि कैसे बजटिंग करते हैं? फाइनेंशियल स्किल्स में ना सबसे लास्ट में नंबर स्किल्स आती है। फाइनेंशियल स्किल्स द फर्स्ट 3 थिंग्स यू हैव टू डेवलप फॉर योरसेल्फ। जब भी आप लग्जरी खरीदे तो हैव सम फॉर्मूला टू बाय लग्जरी। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू 2 formulas. Active income has to be reinvested to make passive income. Correct. Else you will be a slave for life. And today 95% of corporate India is living paycheck to paycheck. So now if I have 100 rupees, Got it. कैसे सेव करना चाहिए, कैसे स्पेंड करना चाहिए, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए? The problem is when you start looking at your investments every day and try to intervene it. तो चार्ली मंगर एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि the first rule of compounding is don't disturb it. वो कौन से फैक्टर्स है that we should keep in mind while choosing the right credit card? Credit card is a very important instrument in life. बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? I'll just take a step back to explain. Should you use a credit card responsibly? और जो क्रेडिट स्कोर आप बता रहे थे, वो कैसे रिस्पॉन्सिबली बिल्ड हो सकता है? Hold at least 3-4 credit cards. You will be rewarded if you have a credit card for more than 5 years. लोन्स सिलेक्ट करने वक्त क्या फैक्टर्स लोगों को देखने चाहिए बहुत ही क्लोज? Loan is given cheaper to females. रियली? या आपका पैसा है, हार्ड नेगोशिएट विद देम। 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक, लड़ा दो उन लोगों को। ऐसे और कई रास्ते हैं जहाँ पे यू कैन रियली ग्रो योर वेल्थ एंड से सम गवर्नमेंट स्कीम्स दैट वी कैन टॉक अबाउट. You have to be an owner, you can't be an earner. Let's talk about sovereign gold bonds. Gold is the most unproductive asset. So what are some of the strategies that people can apply कि वो एक comfortable retirement के लिए plan कर सके while keeping their current finances comfortable? 3.5 साल निकल गए, I made 0 returns. Today that fund is valued at 82 lakhs. मेरे को लगता है किसी ने बोल दिया. Sorry sir. No, it's okay. मतलब I think the story worked. We would have invested 10,000 rupees one time. आज उसकी वैल्यू 45 crore से ज्यादा है. Is it possible to save enough and retire by 40? What does it take to actually be financially independent? Having started investing at the age of 17, Sanjay's mission is to make finance fun and accessible. And to that end, he has educated 1 lakh students on finance till date. So join us as we unlock the secrets to mastering your finances, budgeting, making the most out of credit cards, smart borrowing, growing your wealth, and staying ready for life surprises. This episode is packed with information that you don't want to miss. Keep watching from Masterclass in Finance. Welcome to Humans of Bombay show, Sanjay. वर्क आपका काम बहुत अच्छा है. हाँ. आप रियल लाइफ स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं सबके सामने. और अब तो आप दिल्ली के हैं, पर ओरिजिनली आप ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ही थे. हाँ, I am a human of Bombay. You're a Yes. human of Bombay. हाँ, Okay. वो मी मुंबई का रहे. So Sanjay, you started investing when you were 17. You're inspired by a great man, Warren Buffett, and आपको UN से भी recognition मिला है because you educate people on the world of finance, जो काफ़ी complicated लगता है काफ़ी सारे लोगों को. And after training over 6,000 people, आपको इतना तो you would have that understanding, right? कि generally trend क्या है लोगों में. What has been your biggest learning in this journey? My biggest learning in this journey is कि करिश्मा होता क्या है कि लोग है ना ओवरनाइट रिच बनना चाहते हैं. I think that is the biggest mistake which people end up making. And obviously when you are young तो मन करता है कि यार अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद पाएँ. अभी तो you only live once, you know, all those kind of things. तो I think the Gen Z belongs to that kind of spend category. तो लोग ये सोचते हैं कि यार कल के कल पैसा बन जाए. They are not ready to invest. So like you build your career, आप अपना career बनाते हो. तो you don't become a CEO on day one. You become an executive, then manager, GM, ऐसे करके आप ग्रो करते हो. पर इन्वेस्टमेंट में पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम कुछ तो करेंगे और कल ही हम 2x, 3x, 5x, 10x कर लेंगे. तो आई थिंक दैट हैज़ बीन वन वेरी बिग लर्निंग कि लोग वेल्थ बिल्ड करना नहीं जानते हैं. दे हैव वेरी बैड मनी रिलेशंस और उन लोग को पता ही नहीं पैसे को खर्च कैसे करना है, निवेश कैसे करना है, पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है और कब पैसा उनका इस्तेमाल कर रहा होता है उनको पता भी नहीं चलता. करेक्ट. आई थिंक ये कुछ मेरी लर्निंग्स रही हैं एंड उस वजह से हम देखते हैं कि only less than 25% in India, people in India are financially independent. 40 to 50% of the parents still think कि उनके बच्चे उनका ख्याल रखेंगे. तो आई थिंक बहुत पीछे हैं हम अभी एज अ कंट्री, एज अ नेशन ऑल्सो ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन. आई एम जस्ट ट्राइंग टू
do my bit, whatever I can on Of course, and this goes in many different directions, right? क्योंकि अगर आप West में देखो तो once you go out to study in college or you're 18 तो you technically move out. तो फिर उसके बाद आप you have to become financially independent, right? क्योंकि and it's a very good thing. It's a double-edged sword कि हमें वो backing हमेशा है कि हम अपने family के घर में रहें, वो सारे bills are taken care of. तो ये कॉन्वर्जेशन स्पेशली यूथ के लिए है जो अभी हम खुद के करियर में और सर्टेन डिसीजंस ले रहे हैं जो काफ़ी पिवटल होगा लाइफ लॉन्ग. सो जैसे आपने कहा कि जो यूथ है यू गेट दैट फोमो फैक्टर ना कि मुझे भी आईफोन खरीदना है, मुझे भी ये न्यू गैजेट्स व्हाटएवर, देयर आर लाइक 1000 थिंग्स दैट यू कैन बाय. सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव द यूथ कि कैसे बजटिंग करते हैं जो इनकम आ रही हो, फर्स्ट सैलरी तो इतनी नहीं होगी, तो उनको डिवाइड कैसे करना है? गुड क्वेश्चन. एंड आई थिंक जो आपने वर्ड यूज किया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो. सो आई थिंक फाइनेंशियल स्किल्स में हम कहते हैं कि हर इंसान को फाइनेंशियल स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, पर फाइनेंशियल स्किल्स में ना सबसे लास्ट में नंबर स्किल्स आती है और फाइनेंशियल स्किल्स आती है. द फर्स्ट 3 थिंग्स यू हैव टू डेवलप फॉर योर सेल्फ इज अवॉइडेंस ऑफ फोमो. सबसे पहला एट द टॉप. अगर आप फोमो से बच गए तो आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे जाओगे. सेकेंड थिंग इज अवॉइडेंस ऑफ रिग्रेट, बिकॉज रिग्रेट से एक चीज़ आती है जिसे मैं कहता हूँ फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन. सो आई गिव एन एग्जांपल. समझिए मैंने कोई शेयर 100 रुपये में खरीदा, वो 130 चला गया, मैंने बेच दिया. अच्छा पैसा बन गया, 30 रुपये बन गए पर शेयर. नाउ दैट गोज टू 160 एंड इट हैज़ अ पोटेंशियल टू गो टू 250. तो मैं नहीं खरीदूंगा बिकॉज मेरा प्राइस एंकर हो गया है कि 130. मुझे रिग्रेट है, मैंने 130 रुपये में बेच दिया. तो मैं क्योंकि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ. नहीं यार वो ज़रा 160 का 130 हो जाएगा ना तब खरीद लूँगा, 140 हो जाएगा ना तब खरीद लूँगा. सो आई मिस आउट ऑन द रैली. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स मैं सबको पुश करता कर SIP कर. अरे यार वो जब निफ्टी 18,000 हो जाएगा ना तब करूँगा. अब वो निफ्टी 22,000 हो गया, अब यार जो निफ्टी 20,000 हो जाएगा ना तब करूँगा. तो वो इससे चलता गया एंड ही हैज़ मिस द रैली फ्रॉम 20 to 25,000. तो वो उसने मिस कर दिया. सो आई थिंक सेकेंड इज रिग्रेट अवॉइड करो. And third is don't change your financial goalposts. People end up changing their financial goalposts. एक साल पहले वो जो सोचते हैं कि मेरी ड्रीम था कि भाई मैं 10 साल बाद रिटायर होना चाहता हूँ इतने कॉपर्स के साथ, सडनली 1 year down the line the goalpost changes. Even if you are Ronaldo and you are playing and suddenly आप पहुँचे, आपका माइंड में था गोल यहाँ है और आपने आँख खोल के देखे तो गोल तो वहाँ चला गया, तो you'll not be able to score. करेक्ट. तो ये 3 चीज़ें जो है एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहले ये 3 चीज़ें डेवलप करनी है. नाउ अदर थिंग विच इज़ buying an iPhone or luxury, I want to own a Louis Vuitton की belt या Gucci की belt या Gucci का bag. See, you have to have an ecosystem which supports that. अब एक लड़का था मेरे यहाँ and मतलब जहाँ मैं पहले काम करता था, and this guy reasonably good salary, okay, 70,000-75,000 one type salary, single, parents के साथ रहता था. 3-4 महीने बाद उठ के he bought a Louis Vuitton की belt. ठीक है, so that belt was like ₹1,00,000 or something, lakh and a half. ठीक है, तो आई एम टॉकिंग फ्यू ईयर्स बैक. वो लुई विटॉन भी हर साल 10% प्राइस बढ़ाते रहते हैं, तो आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 8-9 ईयर्स बैक. तो 1-1.5 लाख रुपए में कुछ बेल्ट उठा के ले आया. अब वो बेल्ट पहन के ना वो ऑटो से उतर रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा कि वो बेल्ट नकली है, बिकॉज दैट ही डजंट हैव दैट इकोसिस्टम. इफ यू हैव टू वेयर लुई विटॉन यू हैव टू हैव अ गुड कार, गुड हाउस, गुड सैलरी, गुड इनकम. आप एक ही चीज़ लुई विटॉन की उठा के ले आए और आपको मज़ा आ रहा है यार मैं लुई विटॉन पहन रहा हूँ, बट यू डोंट हैव द ब्रांड ऑफ योर ओन सेल्फ. So I always say, rather than spending on a brand, become a brand. Wow. तो अगर आप एक ब्रांड बन गए, तो मैं नकली लुई विटॉन भी पहन के आऊँगा, यार संजय है ना शायद ठीक पैसा है पहन लिया होगा, तो I can take that advantage. Correct. तो if you really want to eye that thing, you first become a brand yourself. Second is you are losing out that opportunity जो 1-2 लाख रुपए आपने आज वो लुई विटॉन में डाल दिया या किसी में भी डाल दिया. I'm just taking लुई विटॉन as an example, nothing against them. बट अगर आज आपने डाल दिया तो आपने जो उसका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पॉसिबिलिटी था उसको खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया. एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू हैव गॉट इनटू अ डेट विच इज नाउ डेज कॉल्ड बाय नाउ पे लेटर, कि स्लोली आप पे करते रहना. एंड पीपल एंड अप अक्यूमुलेटिंग सो मेनी EMIs. आई हैव सीन पीपल 20,000 सैलरी 30,000 EMIs. मैं तो भरेगा कैसे यार, मैथ तो बता दे कि 20,000 की तेरी तनख्वाह है और तो 30,000 की EMI लेके बैठेगा. एक वो आईफोन की है, एक वो कोई JBL का साउंड बार ले लिया, एक अच्छा सा 70 इंच का TV ले लिया, रूम में बैठ के नेटफ्लिक्स देखना है.
तो तुम कैसे ग्रो भी नहीं कर पाओगे और EMI भी पे नहीं कर पाओगे. वो स्टंट ही रहेगा क्योंकि you've over committed. हाँ, बिल्कुल. over subscribed. तो आप क्या करोगे? अब आप स्ट्रेस में आओगे, दोस्त से लास्ट में पैसा मांगोगे, अरे यार आज 25 तारीख हो गई, अब अकाउंट में पैसा नहीं, दोस्त 5,000 दे दे. तो ये सॉरी टू यूज द वर्ड मोहताजी की जिंदगी क्यों जीनी है? हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, कट डाउन ऑन दोज एक्सपेंसेस अर्लियर पार्ट ऑफ द लाइफ. सो आई थिंक फोमो को अवॉइड करें. कोशिश करें कि जब भी आप लग्जरी खरीदें तो हैव सम फॉर्मूला टू बाय लग्जरी. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू 2 formulas. वन इज ट्राई टू बाय लग्जरी फ्रॉम पैसिव इनकम. वेरी गुड. तो पहले जनरेट कर लो, मुझे 1 लाख रुपए की बेल्ट खरीदनी है, तो ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट लाओ या ऐसा कुछ काम करो कि आपको 1 लाख रुपए साइड हसल से आ रहा है या पैसिवली आ रहा है, तो खरीदो, कोई जो प्रॉब्लम फिक्स्ड नहीं. इनकम से नहीं आ रहा है. ना फिक्स्ड एक्टिव इनकम हैज टू बी रीइन्वेस्टेड टू मेक पैसिव इनकम. Correct. एल्स यू विल बी अ स्लेव फॉर लाइफ. अगर आप एक्टिव इनकम से लग्जरी खरीदने लग गए, यू विल बी अ स्लेव फॉर लाइफ. सी करिश्मा, जब मैंने आई डिड अ नॉर्मल MBA, नॉर्मल इंजीनियरिंग, आई एम नॉट फ्रॉम IIT, पर मैंने जब ग्रो किया अपने करियर में, आई हैड 2 choices टू मेक. वन इज आई कुड हैव ऑल्सो बॉट अ Mercedes. ठीक है, आई वॉज एट अ गुड सैलरी, बट जब मैं Mercedes खरीद सकता था, मैंने Honda खरीदी. मैंने वो पैसा बचाया और उसको इन्वेस्ट किया. मेरे दोस्तों ने Mercedes खरीदी, घर खरीदा, दूसरी गाड़ी खरीद ली, उन्होंने लग्जरी खरीदा. टुडे देयर सिचुएशन इज सच कि उनकी 5 लाख रुपए महीना तनख्वाह होने के बावजूद भी अगर अगले महीने की तनख्वाह नहीं आई, दे आर गॉन. एंड आफ्टर 5 लाख सैलरी दे आर नॉट एबल टू डू 20,000 SIP. दे कांट इन्वेस्ट 20,000 बिकॉज 2 लाख की EMI है. Very scary place to be. Yes. So they are not going to be financially independent for their life. Wow. And today 95% of corporate India is living paycheck to paycheck. अगर 95% लोगों का अगले महीने का पेचेक नहीं आया, जो कोविड में हमने देखा भी, what happened, तो they are gone. They don't have 3 months saving. Correct. So now let's get to this part of it, right? कि हमारे ऑफिस में भी काफ़ी सारे यूथ है, आपने देखा है. जी. Young people who are drawing good salaries for themselves. And जो ऐसे कहते हैं ना कि जो आपने कहा कि दिस इज गोइंग टू सिक्योर यू, एक सिक्योरिटी होती है कि दिस अमाउंट आई विल कीप इन द फंड, कुछ भी हो जाए, there's a rainy day for whatever reason. So now if I have 100 rupees, ठीक है, मुझे सैलरीज में 100 rupees मिल रहे हैं, उसका डिविजन आप बता दीजिए कि कैसे सेव करना चाहिए, कैसे स्पेंड करना चाहिए, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए. गॉट इट. ठीक है. सो व्हाटएवर द सैलरी इज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू शुड नो योर बजट. सैलरी कुछ भी हो आपकी, 20,000, 50,000, 1 लाख, दैट डजंट मैटर. यू शुड नो वेयर योर मनी इज गोइंग. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो वेयर देयर मनी इज गोइंग. आप अपने ऑफिस में ही सबको बुला लो और बोलो कि भाई तुम एक बात बताओ, लेट्स से यू मेक 30,000 a month, हाउ मच इज योर एक्सपेंस? आई एम गारंटिंग यू 99% पीपल वोंट नो देयर एक्सपेंस. 99. लाइक एग्जैक्ट एक्सपेंस. हाँ, मतलब गिवन टू अ 5%, 10% रेंज. ठीक है. तो उसके बाद चलो, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज दिस मनी गोइंग? इन माई क्लास आई डिड एन एक्सरसाइज करिश्मा, एंड मैंने सबको बोला बजट बनाओ. एक बंदा 90,000 सैलरी पे है, घर में रहता है, EMI वो किराया नहीं है, EMI नहीं है, एंड ही हैज लग्जरी EMIs ऑफ अराउंड अबाउट 25-30,000. लग्जरी EMIs मतलब एक तो शादी का थोड़ा सा लोन था और एक कार का लोन था. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज स्पेंडिंग 8,000 rupees ऑन UPI विच ही डजंट इवन नो कहाँ जा रहा है. 8,000 rupees फ्रॉम UPI ही इज स्पेंडिंग एवरी मंथ एंड ही डजंट नो वेयर इट इज गोइंग. मतलब ऐसे रिकरिंग है कि अलग अलग, मतलब कभी 8 है, कभी 7 है, कभी 9 है, ऐसा कुछ नंबर. सो ही इज नॉट एबल टू गेस कि सर मैंने बोला पिछले 4 महीने का बजट बनाओ. सर ये 8,000 चला गया, अरे ये 7,000 चला गया, समझ नहीं आया सर कहाँ चला गया. इट हैज बिकम अ ब्लडी वीडियो गेम कि तुम्हारे पास बस वो स्कैनर है, QR कोड है, उसको स्कैन किया और पैसा चला गया. आपको पता ही नहीं है आप खर्च कहाँ कर रहे हो. तो पहली चीज़ है, डू वट एवर इज योर सैलरीज बॉस, कुछ भी 10,000, 20,000, कुछ भी हो, फर्स्ट मेक योर बजट. वेयर योर मनी इज गोइंग यू शुड नो, बिकॉज इट्स योर मनी. एटलीस्ट उतना तो राइट है ना आपके पास कि आपको पता होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज देन कट डाउन ऑन द एक्सपेंसेस विच आर यूजलेस. सी लॉट ऑफ पीपल कम टू मी, करिश्मा सर मेरे को ना ट्रैवल करने का बहुत शौक है, पर मेरे पास पैसे नहीं बचते. लाइक बजट दिखाओ. बजट दिखाया तो पता चला Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन चल रही है, Netflix की सब्सक्रिप्शन चल रही है, साल के 10,000 रुपये, 15,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन चल रही है, दिन में 5 सिगरेट फूक रहे हैं, से पुटिंग अराउंड अबाउट 50,000, 40,000 ऑन सिगरेट्स. Yes, you'll be shocked, but they don't have money to go for a vacation, but they have 40-50,000 a year to put on cigarettes. तो एक तो अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, ऊपर से अपने हैप्पीनेस विजन. सो आई ऑलवेज से दैट योर बजट हैज टू बी अलाइंड विद योर हैप्पीनेस विजन. मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सब कुछ छोड़ के SIP करो. मैं कह रहा हूँ खुश रहना है ना, तो खुश रहने के लिए बजट बनाओ. करेक्ट. खुश रहने के लिए बजट में से स्पेस निकालो. ओके, आई वांट टू ट्रैवल, it'll take me 30,000 this year to travel. I want to go to Rishikesh, I want to do
river rafting, blah blah blah. 30,000, that's 2,500 a month. 12 महीने आप 2,500 a month save कर लो. So you at least you'll be happy after 12 months. So second is that your happiness vision and your budget should be absolutely aligned. Okay. ठीक है. Third step is if you're single, don't have much liabilities, go for at least 6 months of creation of emergency fund. जिसे आप रेनी डे फंड कह सकते हो या बैकअप फंड कह सकते हो, कुछ भी कहते हो, SOS फंड कह सकते हो. तो 6 महीने का आपके पास एटलीस्ट वो पैसा होना चाहिए और वो पैसा प्योर FD में पार्क्ड होना चाहिए. बिकॉज द रोल ऑफ दैट मनी इज नॉट टू गिव यू रिटर्न्स. द रोल ऑफ दैट मनी इज टू सिक्योर यू इन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. तो इसलिए आपके पास एक 6 महीने का बफर होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप इज यू शुड बी इंश्योर्ड बिकॉज अ ह्यूमन, जैसे साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि ह्यूमंस ना जब वो सिक्योर फील करते हैं तो वो ग्रोथ ले पाते हैं. करेक्ट. तो आप अपना सिक्योरिटी बिल्ड करो. इफ यू आर इंडिपेंडेंट, यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंट्स, डोंट टेक अ लाइफ इंश्योरेंस राइट नाउ. छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मत लो. पर हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो. करेक्ट. एंड मिनिमम 10 लाख की लो. ये खाना पूर्ति मत करो 1-2 लाख रुपए के लेके. और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हेल्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट. दी मोस्ट. ये रहेगा तो सब रहेगा. करेक्ट. तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, चाहे उसमें आपको साल भर का 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये ज़्यादा डालना पड़ता है. इट्स ओके, यू आर यंग. आपका EMI प्रीमियम बर्डन वुड बी लेस. एग्जैक्टली. So now what has happened? You have budgeted, okay? You have created an emergency fund, and you have bought insurance. Now whatever is left has to go in 2 places. One is your own growth. See, people believe कि they have some magical powers which is gifted to them, कि अचानक से वो आज कोई shares खरीदेंगे और वो अगले दिन double हो जाएंगे. तो I am sorry to say वो होने नहीं वाला. But there is a magical place where you can double your wealth, which is your own self. So if you are drawing a 25,000 salary today और आप अपने आप को upskill कर लेते हो, रेलेवेंट स्किल्स ले आते हो, पढ़ लेते हो, तो हो सकता है आपकी सैलरी अगले साल 50,000 महीना हो सकती है. बहुत इन योर केस ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ ओवर परफॉर्मर्स, गुड परफॉर्मर्स, जिनको आपने 2x 3x किया होगा सैलरी. तो वो क्यों कर पाए? सैलरी 2x हो गई ना. तो फर्स्ट पार्ट इज जब आप यंग हो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग राइट नाउ कि पूरा इन्वेस्टमेंट्स कैसे करूं, स्टार्ट थिंकिंग कि मैं अपनी इनकम कैसे ग्रो करूं. बिकॉज इफ यू आर एट 25,000, maybe you can do what 3,000-4,000 of SIP. But if you're at 50,000, you can easily do 10,000 to 12,000 rupees of SIP. तो सडनली आपका SIP जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज यू हैव अर्न्ड दैट एक्स्ट्रा 25,000. And the yield will also be higher. The yield will be higher. Your goals will be faster. आपने 10 साल का सोचा था वो 7 साल में हो जाएगा, 20 साल का सोचा था वो 15 में हो जाएगा. Because you're investing more. And this is irreplaceable. इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स नेगेटिव हो सकते हैं, आपके माइंड में जाके रिटर्न्स कभी नेगेटिव नहीं होते. So if you have upskilled yourself, your returns will always be positive and they will compound. That's a brilliant place to compound your money. Correct. Third, next आ गया is whatever you save, then you put some part of it in investments. और investments random नहीं करना, goal based करना. So you must have some goals कि 5 साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है. So I want let's say 10 लाख रुपये गाड़ी चाहिए, तो 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट चाहिए. So I want to build 2 lakh rupee का corpus in 5 years. 10 years down the line, I want to do an MBA, second MBA. For that, I need, let's say, 20 lakh rupees or 30 lakh rupees. 25 years down the line, I want to financially retire. Okay, for that, I need, let's say, 3 crore rupees. तो आपने That's okay. तो आपने क्या किया? आपने गोल्स क्रिएट कर दिए. अब इन गोल्स के हिसाब से एसेट एलोकेशन होगा. इस एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लीव दैट प्लेस एंड गो अवे एंड डू योर वर्क. The problem is when you start looking at your investments every day and try to intervene it. तो चार्ली मंगर एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि the first rule of compounding is don't disturb it. Yeah. Let it do its job. Let it do its job. कभी ऊपर नीचे होगा, it's okay. Just have that resilience to face the uncertainties. And in long term you will make money. आपको लंबे समय में पैसा बनना ही बनना है. ठीक है. तो इसको एक फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं. Okay. Which I asked you in the जो initial question था. And great explanation. I think that really decode हो गया लोगों के दिमाग में कि actually किस तरीके से का vision भी बनाया जाए. So now if I have 100 rupees. Once again coming to that. Let's go to the 100 rupee. ठीक है. Can you give me a bifurcation of say, and क्योंकि let's keep a little bit of room कि लोगों को travel करना ही है. कुछ expensive यहाँ वहाँ होगा ही. Like for example when you were telling me about UPI. मैं भी सोच रही थी कि मेरा स्विगी जोमेटो इंस्टाकार्ट जेप्टो में से I have no idea on UPI, right? Because और इतना easy हो गया है कि you just it's become a video game. It's 1 second and you forget it. Yeah. But that's life now. वो तो I mean I think that जो privileged है वो लोग ही इस्तेमाल करते हैं the UPI bit at least. So let's talk about the 100 rupee analogy, right? कितना expenses में जाएगा roughly? How much should
the emergency corpus be, insurance, and say travel fund, right? ठीक है. For fun and ठीक है. investments, however you deem fit. See, मैं ना generally a lot of people talk about 50, 30, 20 rules. I think आप ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते. इसलिए मैंने पहले फ्रेमवर्क दिया था, बट सिंस यू हैव आस्क्ड मी अगेन, आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं ब्रॉडली एक ऐसे व्यक्ति को, मेरे को एक पर्सोना पकड़ता हूँ. दिस पर्सोना इज समबडी हु इज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ लेट्स से 5 lakhs a year. Okay. ठीक है, एक पर्सोना मेरे को होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो इफ ही इज ड्रॉइंग 5 lakhs a year, आई बिलीव his expenses in a city like Mumbai should not cross 2.5 lakh rupees per annum. ठीक है, maximum. This is upper. After that, every month or in toto, 1 lakh rupee he has to put into his emergency fund. Okay. ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया. 1 लाख रुपए का आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट, बिकॉज वो इमरजेंसी फंड उसको एक्चुअली लाना है अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए का. पर अभी पहले दिन तो बनेगा नहीं, बिकॉज ही जस्ट स्टार्टेड हिज वर्क. It has to compound. इट हैज टू कंपाउंड, इट हैज टू बी काइंड ऑफ अ रिकरिंग डिपॉजिट. तो रिकरिंग डिपॉजिट तब तक चलेगा जब तक वो 2.5 लाख रुपए का कॉर्पस क्रिएट नहीं कर लेता, बिकॉज ही हैज टू हैव 6 months ऑफ एक्सपेंसेस इन हिज फिक्स्ड डिपॉजिट. तो पहला 2.5 लाख रुपए उसने एक्सपेंस कर दिया, 1 लाख रुपए उसने इमरजेंसी फंड में डाला, तब तक डाला जब तक इमरजेंसी फंड बन नहीं जाता. सो दिस इज हिज एक्सपेंस विच ही कुड हैव डन, बट ही इज नॉट डूइंग टू सेव हिमसेल्फ फॉर द फ्यूचर. Correct. ठीक है, तो ये वेरिएबल है 1 लाख रुपए. अब हमारे पास 3.5 लाख चले गए, 1.5 लाख रुपए बच गए. 1.5 लाख रुपए बच गया, उसमें से आप 50% लग्जरी, ट्रैवल, हैप्पीनेस विजन पे डाल दो और बचा हुआ 75,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो. Okay. Good framework. हाँ, broadly if you can follow this, and then that 1 lakh rupee which you are putting every year, वो जिस दिन आपने वो कर दिया, रीच कर लिया अपना नंबर, then you can take that out and it becomes again, you can partly distribute it to happiness vision and partly distribute it to investment. Okay. So broadly, if you stick to this framework, you will have a reasonably okay life. Okay, ठीक है. Let's talk about credit cards. इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं. एवरी काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड हैज डिफरेंट ऑफरिंग्स, राइट? कि आप हमारा कार्ड खरीद लो, आपको ये कैशबैक मिलेगा. आप ये प्रीमियम मेंबरशिप ले लो, यू गेट 20% ऑफ ऑन रेस्टोरेंट्स, डाइनिंग, लग्जरी. देयर इज एन अरे. वो कौन से फैक्टर्स है दैट वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग द राइट क्रेडिट कार्ड? Very good question. I'll try to answer it to the best of my abilities on this. So first of all, credit cards are a very important instrument in life. बहुत ज़रूरी है. अब क्यों ज़रूरी है? I'll just take a step back to explain. See, when you enter the corporate world, आपका ना CIBIL, so it's like, let's say somebody, you are doing a business and Sanjay Kathuria comes and tells you, I want to be, let's say, give you some service. तो आपको पहले ही दिन मतलब आप मेरे को क्रेडिट नहीं दोगे, मतलब in the sense you will not, you will say कि भाई मेरे को पैसे अभी के अभी चाहिए. I don't know you, Sanjay. I don't know your behavior. So similar are banks. Banks के पास आप जाओगे ना तो वो बोलेगा, who are you? In my system you don't exist. So your CIBIL becomes -1. So -1 doesn't mean you're bad. -1 means that the bank doesn't know your behavior. So you have to establish a behavior. तो जब आप establish करते हो अपना behavior, वहाँ पे आप पहला credit card से ही कर सकते हो. So let's say you have some salary, you put some 15-20,000 का FD and take one credit card and service it for 3-4 months. तो आपका credit score बनने लग जाता है. Now, what kind of credit card should be taken? Very good question. Go back to your expenses. See what are the last 6 months of expenses. आप पहले 6 महीने का एक्सपेंस देखो. आप डाइन आउट ज़्यादा कर रहे हो, आप मूवी ज़्यादा देखते हो, आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो, आप कर क्या रहे हो ज़्यादा. डोंट गेट बैफिल्ड बाय व्हाट दे आर ऑफरिंग. फर्स्ट सी व्हाट यू आर डूइंग. होता क्या है कि बिकॉज द मार्केटिंग जीनियसेस इन देयर कंपनीज प्ले विद योर ब्रेन, दे डू समथिंग कॉल्ड एज NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. सो दे विल मेक नाइस पिक्चर्स एंड लुभा देंगे और वो 5,000 रुपये साल का आपसे ले लेंगे इन द नेम ऑफ फीस. नाउ फर्स्ट यू नीड टू नो कि भाई वो जो मेरे को दे रहा है उसका यूज़ भी है कि नहीं मेरे लिए, और इट इज़ जस्ट एन एक्यूमुलेशन बिकॉज आई वेंट इंस्टिंक्टिव एंड मैंने जाके खरीद लिया. तो आप पहले देखो आपका पिछला 6 महीने के एक्सपेंसेस में मेजर पोर्शन क्या है. अब वो मेजर पोर्शन अगर डाइन आउट है कि भाई मैं तो बहुत बार बाहर जाता हूँ, मेरा तो साल में महीने में अगर 40,000 तनख्वाह है तो 10,000 रुपये तो डाइन आउट पे जा रहा है या 5,000 रुपये डाइन आउट पे जा रहा है. तो दैट्स द प्लेस वेर यू नीड टू ऑप्टिमाइज. सो गो फॉर द कार्ड विच ऑप्टिमाइजेज दैट. बोले नहीं यार मैं तो मूवी बफ हूँ, मैं तो हर फ्राइडे फर्स्ट शो lying down on the recliner of PVR paying 1,500 rupees का टिकट, but I want to do that. It's okay, you're happy with doing that, I'm very happy. Choice है. तो वो वाला कार्ड ले लो जहाँ वहाँ 10-15% डिस्काउंट मिल जाए. तो क्रेडिट कार्ड बाइंग शुड बी अलाइन टू योर गोल. करिश्मा पूरे डिस्कशन में ना तुम ये गोल वर्ड ज़्यादा सुनोगे मुझसे, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन नॉट टेक एनी रैंडम डिसीजंस इन योर लाइफ एंड स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंस. अगर आपको कोई भी फाइनेंस बेस्ड डिसीजन लेना तो इट हैज़ टू बी गोल बेस्ड. इट कांट बी शूटिंग इन द डार्क.
तो अगर कोई क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हो, आप अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करो, वेरेवर यू आर स्पेंडिंग मोर, वहाँ पे उसका यूज होना चाहिए, वहाँ का आपका बेनिफिट होना चाहिए, इट इज़ गुड फॉर यू, टेक दैट. ओके, फॉलो अप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पे. मैंने कार्ड ले लिया और कई सारे रिवॉर्ड्स होते हैं जो रिडीम कभी होते ही नहीं है. हाँ, यू नो, यू कलेक्ट पॉइंट्स, जो माइल्स होते हैं, यू कैन कलेक्ट दिस मच एंड देन पुट इट समवेयर एल्स. वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. तो एक्चुअली रिवॉर्ड के स्टेप पर जाते कैसे हैं, एंड हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू एजुकेट योर सेल्फ ऑन दिस मटीरियल? देखिए, एनीथिंग विच यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ ऑन, और आई थिंक क्रेडिट कार्ड्स आर very beautifully driven. So I am an American Express user for last 14 years. तो जब American Express इंडिया में आया था, and whenever I need to redeem, I just need to call them, talk to them. They ask me कि सर आपको किस तरह का redemption चाहिए. We have option A, white goods, this, that. Option B, travel, hotel. Option C, this, that. तो वही मुझसे पूछ लेते हैं. इसमें ज़्यादा complication है ही नहीं. You just need to be conscious. करिश्मा, problem is लोग conscious नहीं है. Let me ask you, how many reward points do you have? नहीं होगा पता. No problem, मेरे को भी नहीं पता है. Because it may not matter to me right now. Correct. ठीक है, बट अगर मुझे थोड़ा पता हो कि रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करो तो आपका तो कुछ लोगों का तो 2-3 लाख रुपए साल का इसी चीज़ में बच जाता है. हाँ, अब बिजनेस क्लास अपग्रेड्स हो गए, या ये हो गया, या आई हर्ड समबडी सेइंग कि उन्होंने तो गाड़ी का डाउन पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर लिया तो बहुत ज़बरदस्त कैशबैक मिला. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल टू यूज़, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉन्शियसनेस तो होना चाहिए ना. अगर आपका कॉन्शियसनेस है, मेक अ कॉल टू द कॉल सेंटर एंड से कि सर ये मेरे पास रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, जस्ट टेल मी हाउ आई कैन. वेरी हेल्पफुल, जनरली दे आर वेरी हेल्पफुल. यस, एज आई सेड, मैं तो अमेरिकन एक्सप्रेस यूजर हूं, तो जनरली दे हैव बीन वेरी वेरी काइंड टू मी एंड दे विल हेल्प मी कि सर आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे और गाइड यू बेसिकली. ओके, एंड अगेन दे विल आस्क मी माय विजन कि सर करना क्या आपने, मतलब आपको घूमने जाना है, फिरने जाना है, या फिर आपको कुछ घर के लिए चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू नीड टू टेक. A third question on credit card जो I think is very important is how do you use a credit card responsibly? क्योंकि जैसे UPI है, even credit card easy, right? You don't actually see the physical money going, but it's a tap of a literally a tap of a button now. और जो credit score आप बता रहे थे, वो कैसे responsibly build हो सकता है for people who are looking to generate wealth? क्योंकि credit score पे भी बहुत weightage है. Yep. So let me tell you first the importance of having a better credit score. Okay, and you can check this on any website of any home loan company. अगर आपका सिबिल 710 है वर्सेस 810 है, तो आपका इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस करीबन 0.5% होता है. इट मे साउंड ठीक है यार, 0.5% क्या बड़ी बात है, बट ओवर 25 years on a 1 crore loan, that number is around about 11-12 lakh rupees. So that means you have that potential to save. Now how do we reach to a good credit score? Step number 1 on credit card is don't spend more than 40% of your limit. Maximum, outer. Never spend more than 40% of your limit. Second thing, hold at least 3-4 credit cards. ठीक है, hold at least 3-4 credit cards. Third, each credit card should not cross your salary limit in terms of its own limit. अगर आपकी सैलरी let's say 50,000 है, तो एक क्रेडिट कार्ड 50,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए. ठीक है. Fourth, have long term relationships here at least. बिकॉज वो मैं एक और प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि नॉन कमिटल जनरेशन. तो हियर यू विल बी रिवॉर्डेड इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड फॉर मोर देन 5 years. तो 5 साल एटलीस्ट एक क्रेडिट कार्ड को दीजिए. कभी कभी क्या होता है, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद द कस्टमर सर्विस और समथिंग हैज हैपेंड, सम बिलिंग इशू हैज हैपेंड एंड यू बिकम इंटॉलरेंट एंड से यार हट, मैं ये क्रेडिट जस्ट कट इट इनटू 4 pieces एंड यू नो इट्स वो मत करो. स्पेंड सम 3-5 years with that credit card, your score will improve. Because see you have to understand they are assessing your character. आपका कैरेक्टर असेस कर रहे हैं, तो कैरेक्टर असेस कैसे करेंगे? आपके रीपेमेंट बिहेवियर से करेंगे, आपके स्पेंड बिहेवियर से करेंगे, आपके रिलेशनशिप बिहेवियर से करेंगे. वही ठीक करना है अपने को. ये तीनों चीज़ें आप ठीक कर लो, दे विल गिव यू अ वेरी गुड स्कोर. Okay, good advice. Hopefully, as I said, the generation is non-committal, so they have to first align themselves to that. अभी आपने लोन्स की बात की. हर चीज़ के काफ़ी सारे लोन स्कीम होते हैं, whether it's your house, your car, your many loans that are available, right? So loans select करने वक्त क्या factors लोगों को देखने चाहिए बहुत ही closely? See, I think जब आप लोन लेते हो तो सबसे पहला, लोन लेने वक्त ना जनरली 3 चीज़ें आपको खुद के बारे में पता होनी चाहिए. फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ असेसिंग द लोन, फर्स्ट असेस योरसेल्फ ऑन दैट कि आपकी क्षमता है कि नहीं. सो लेट्स से आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल.
and by looking at me, you should know that I'm not going to a gym. So let's say if I go to a gym today, and if I go to a gym today and pick up a 25 kg dumbbell, it's not possible. मैं नहीं उठा पाऊंगा, शायद नहीं उठा पाऊंगा, or maybe it'll pain me a lot, or maybe I'll not do 20 reps. But today I can pick up a 5 kg dumbbell or 10 kg dumbbell and start doing something out of it. So that is called capacity building. But there's another guy in the gym who's doing 50 kgs, 100 kgs, because he's doing it for a very long time. तो इसी तरीके से ना जब आप लोन लेते हो तो आपको अपने कैपेसिटी असेस करनी होती है. 3 points on assessing capacity. First is, does your income have enough capacity to repay your loan? For example, आपकी 1 लाख की कमाई है, 1 लाख पर मंथ की कमाई है और 50,000 की EMI है, तो दैट मीन्स यू कैन पे योर EMI ट्वाइस. तो आपकी क्षमता 2 गुना है, 2 times है. बट 1.5 लाख की कमाई है और 50,000 की EMI है, तो 3 टाइम की क्षमता है. दैट मीन्स यू आर नाउ मोर केपेबल टू रीपे दैट लोन. योर रिस्क हैज गॉन डाउन. बट यही 50,000 की कमाई है और 1 लाख की EMI है. गॉड ब्लेस यू. ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला कि क्या आपकी कमाई में क्षमता है टू रीपे कंसिस्टेंटली द लोन. सेकेंड इज, क्या आपके असेट में क्षमता है टू रीपे द लोन. फॉर एग्जाम्पल, कुछ रीजन के कारण आपकी कमाई बंद हो गई, तो क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ करके वो लोन रिपे कर सकते हो. फॉर गोल्ड, कार, घर, एनीथिंग. सो दैट इज द सेकंड थिंग. सो डज योर एसेट हैव द कैपेसिटी टू रिपे द लोन. दैट इज सेकंड. एंड थर्ड इज योर इनकम रेकरिंग और नॉट. तो ये 3 चीज़ों पे पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट करो कि क्या मेरी कमाई ठीक है, क्या मेरे पास कोई एसेट है जिसको मैं कल को ऊपर नीचे हो गया तो मैं कवर कर सकता हूँ, और क्या मेरी कमाई रेकरिंग है कि नहीं. अगर ये 3 चीज़ें, तो आप लोन के लिए पहले जाओ. अगर ये 3 चीज़ें हैं, नहीं तो जाओ ही मत. देयर इज नो नेसेसिटी टू गो फॉर अ लोन फॉर एनीथिंग. जस्ट स्टॉप दैट परचेज इमीडिएटली, बिकॉज यू डोंट हैव द कैपेसिटी. बॉस, मैं जाके 50 किलो का डंबल उठा लूँ और मेरा हाथ टूट जाए, उससे अच्छा तो मैं 5 किलो का ही उठाऊँ ना, 10 किलो का उठाऊँ, एंड आई बिल्ड माई कैपेसिटी स्लोली. सो दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, नाउ लेट्स से यू हैव द कैपेसिटी, एवरीथिंग इज टिक टिक टिक. अब चले अपन लोन लेने. लोन लेने में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश फ्लो मैचिंग. बहुत अच्छे से करो. कैश फ्लो मैचिंग का मतलब है कि EMI का अमाउंट उतना रखो जो आप बहुत कंफर्टेबली दे पाओ. बहुत कंफर्टेबली दे पाओ. इट शुड नॉट बिकम अ स्ट्रेस. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट हाउस एंड आई फ्लिप्ड इट, मतलब मैंने रखा नहीं उसको, माई इनकम वॉज अराउंड अबाउट 2.5 lakh rupees a month and my EMI was 50,000. वेरी कंफर्टेबल. चला गया, पता भी नहीं चला. तो इफ़ यू हैव दोज काइंड ऑफ रेशियोज, यू बिकम वेरी कंफर्टेबल. तो फर्स्ट इज कि जितनी भी आप कैश फ्लो ऐसा डिजाइन करो लोन का कि आपका EMI बहुत कंफर्टेबली आप रीपे कर सको. सेकेंड चीज़ है, आइडियली इफ पॉसिबल ट्राई टू हैव अ रीपेमेंट क्लोजर का जो फीस होता है वो कम से कम होना चाहिए. दे विल कीप, मतलब वो बिना उसके रखेंगे नहीं, बट ट्राई टू बी एज लो एज पॉसिबल. नेगोशिएट विद देम, क्योंकि वो आपको ना वो काला अक्षर भैंस बराबर वाला हिसाब है. दे विल गिव यू अ 40 page डॉक्यूमेंट, यू विल साइन इट ब्लाइंडली. किसने आज तक लोन डॉक्यूमेंट पढ़ा? कोई नहीं पढ़ता. तो ठक दे विल साइन, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती है. व्हेन यू गो बैक एंड से मेरे को लोन जल्दी क्लोज करना सर, वो 6% रीपेमेंट फीस. यस. सो दिस इज व्हेन यू आर अनकॉन्शियस. इट शुड हैपन टू यू. होना चाहिए. अगर आप अनकॉन्शियस हो तो वंस एक फटका तो पड़ना ही चाहिए ना, तभी तो आगे अक्ल आएगी. या फिर ये पॉडकास्ट सुन लो और बैक. ठीक है. सेकेंड इज, एज आई सेड, कि रीड द डॉक्यूमेंट एंड स्पेंड सम टाइम. इट्स ओके, 1 or 2 hours, एंड रियलाइज कि कोई रीपेमेंट के लिए मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पेनल्टी ना हो. होगी, ट्राई टू मिनिमाइज इट एज मच एज पॉसिबल. नेगोशिएट विद द बैंक, और लड़ा दो बैंक्स को, NBFCs को एक दूसरे के साथ. आजकल वो पीछे पड़े हुए हैं आपके. ठीक है. सो दैट इज पॉइंट नंबर 2. सो हैव दैट थिंग. एंड थर्ड इज, हैव अ टेन्योर विच इज कंफर्टेबल फॉर यू. तो इफ यू फील कि मैं 3 साल में इसको क्लोज करना चाहता हूँ, टेक अ 4-year टेन्योर. अंडरस्टूड. टेन्योर थोड़ा सा ज़्यादा रख लो, इट्स ओके. ठीक है. डोंट स्ट्रेस आउट. माई पॉइंट इज, व्हेन यू टेक अ लोन, डोंट स्ट्रेस. नहीं तो जो लोन ना पे करने का या एक्सेस कैश फ्लो का स्ट्रेस है ना, वो बहुत ज़्यादा है. Correct. तो हैव रिलीज दैट स्ट्रेस. टेक अ लोन विच यू कैन रीपे. ओके. जब लोन एप्लीकेशन प्रोसेस पे आते हैं, आर देयर एनी मिस्टेक्स जो सबसे कॉमन होता है? एक तो आपने बता दिया कि एक्चुअली पढ़ो कि एप्लीकेशन प्रोसेस में है क्या, कॉन्ट्रैक्ट में है क्या. एनी अदर मिस्टेक्स दैट पीपल मोस्ट कॉमनली मेक ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस? व्हाट हैपेंस इज कि लोन्स में ना, जैसे गवर्नमेंट्स की बहुत स्कीम है, बैंक्स की अपनी इंडिविजुअल स्कीम्स होती हैं. यू फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स लोन इज गिवन चीपर टू फीमेल्स. Really? Yeah. Okay. Maybe 25 bips, 30 bips, 30 basis points or something like that. But अगर है तो उठा लो फायदा. Have a joint. Let's say if you have a wife, तो आप वाइफ के साथ कर लीजिए, मदर के साथ कर लीजिए. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. फीमेल है तो आप कर ही सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसे कहीं ना कुछ स्कीम्स होती हैं. सो मैंने नोटिस किया है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम स्विगी, तो मैं एक बार जाके जोमेटो पे भी प्राइस चेक कर लेता हूँ.
ठीक है, और 2 रुपए का भी फर्क होता है, तो आई स्विच माई And लॉयल्टी use that coupon. एंड यूज दैट कूपन. I'm the cheapest thrill I get is the coupon code. The cheapest thrill I get is to compare the prices and buy from the one who's selling me 2 rupees cheaper. Correct. कि Of 2 course, रुपए why बचाऊंगा not? मैं. Yeah, हाँ, of but it's good course. fun. It compounds. Yeah. But here nobody is trying to do that because क्या है, यहाँ पे knowledge नहीं है. तो और यहाँ compounding बड़ी होगी because amounts are very very Of large course. and they are recurring, very very recurring in nature. तो आप थोड़ा टाइम लेके उनकी स्कीम्स को समझो, उनकी स्कीम्स में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा. सेकंड इज हार्ड नेगोशिएट. इट्स योर मनी बॉस, आपका पैसा है. हार्ड नेगोशिएट विद देम. 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक, लड़ा दो उन लोगों को. 10-10 पैसे के लिए वो लड़ेंगे. आप बोलोगे मैंने ये वाला मुझे 9% पे दे रहा है, सर मैं आपको 8.9 पे दूंगा. ओके ठीक है. अरे वो मेरे को 8.9 पे दे रहा है, सर मैं 8.85 पे दूंगा. ओके होगा ये, आई नो दैट बिकॉज वी यूज्ड टू डू दैट. Yeah, of हम लोग course. करते थे. तो आप करो ना, व्हाई डोंट यू डू इट? Correct. 15 बिप्स, 20 बिप्स, कुछ भी बचे. Correct. तो 2-3 चीजें ये ध्यान रखो कि फाइट फॉर योर इंटरेस्ट रेट. Correct. सी इफ देयर आर एनी बेटर स्कीम्स ऑफ जॉइंट ओनरशिप या जॉइंट टेकिंग लोन या कोई भी एक कोई तरीके से आपको बेनिफिट मिल रहा है. एंड तीसरा है यही जो मैंने आपको बताया कि वो रीपेमेंट क्लॉज जो है, प्रीपेमेंट क्लॉज रादर, दैट यू जस्ट Look- प्लीज look at it very closely. look at it very closely because that's where they have the biggest impact. Okay. वहाँ वो अचानक से इफ यू रियलाइज 3 साल बाद कि आपके पास पैसा आ गया, एक विंडफॉल गेन हो गया, कहीं से 10-20 लाख रुपए आ गया, एंड यू वांट टू रीपे दिस लोन. आप जाओगे बोलेगा अच्छा 10 लाख रुपए वापस करने, आपको 50,000 रुपए तो पहले वो देना पड़ेगा, प्रीपेमेंट क्लोजर. तो you get deterred And you lose money. and you lose money. Correct. Why to lose? Okay. Let's talk about growing wealth. काफ़ी सारे टर्म्स है जो लोग फेमिलियर है, जैसे SIP, FDs, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट. ये सब लोगों के दिमाग में है एज टर्म्स. नॉलेज कितनी डीप है दैट इज सब्जेक्ट टू डिबेट, लेकिन ऐसे और कई रास्ते हैं जहाँ पे यू कैन रियली ग्रो योर वेल्थ एंड से सम गवर्नमेंट स्कीम्स दैट वी कैन टॉक अबाउट जो लोगों को पता ही नहीं है. So you want me to? So is there anything besides these terms, or you can explain these terms Okay. and then say that okay, there's also a समझ गया. Got it. some other option. Yeah. See, again, ये काम है ना इंडिविजुअल्स का है नहीं करिश्मा, बिकॉज यू हैव फाइनेंशियल प्लानर्स फॉर दिस. एंड एन इंडिविजुअल कितना भी रिसर्च कर ले उसको सब कुछ पता चलना बहुत मुश्किल है. Correct. बिकॉज देयर सो मेनी काइंड ऑफ. सुकन्या समृद्धि एक स्कीम है फीमेल चाइल्ड के लिए, विच पेज बेटर इंटरेस्ट रेट देन योर FD, विच इज टैक्स फ्री फॉर द पेरेंट जिनकी डॉटर्स हैं. तो अब लोगों को ज़्यादा शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, PPF के बारे में इतना नॉलेज नहीं होगा, ELSS, म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम, टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते थे बीच में, इनके बारे में लोगों को नहीं पता होगा. एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट सपोज टू इवन नो दिस बिकॉज उनका कुछ खुद का काम नहीं है. सी वेल्थ ग्रोइंग में सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर आपने वेल्थ ग्रोइंग के बीच में पैसा विड्रॉ किया तो वेल्थ ग्रो नहीं करेगी. Correct. सिंपल सी बात है. आपने अगर- अब्रप्टली विड्रॉ कर लिया. तो अगर आप FD लेते हो तो FD में अगर आपने 12 मंथ्स के बाद पैसा विड्रॉ कर लिया तो वो तो कंपाउंड ही नहीं होगा. फिर यू स्टार्ट फ्रॉम वो रेस का वही सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो आप. And basis inflation, you're actually back. फिर तो आप पीछे चले गए. एंड FD इज वेरी टैक्स इनएफिशिएंट. अगर आप पैसा विड्रॉ करो या ना करो आपको तो टैक्स देना पड़ेगा. तो अगर आपने 1 लाख रुपए FD में डाला, 8,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट आया, आपने बोला नो बॉस आई डोंट वांट टू टेक दिस आउट, आई एम गुड, I'll add this back to the principal, but you'll have to pay tax on 8,000 because that will be your deemed income for that year. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है FD के साथ, which is not with any equity linked this. And realize one thing, if you want to create wealth, you have to own equity. You have to be an owner, you can't be an earner. If you are an earner, you will not be wealthy. If you are an owner, you'll become wealthy. अब ओनर में 2 तरीके हैं, जैसे आप एक ओनर हैं, you own an institution, तो उससे वेल्थ बन सकती है ओवर टाइम. But everybody is not you because everybody is not entrepreneur in nature. तो वो क्या कर सकते हैं, वो मार्केट से इक्विटी ले सकते हैं. आपकी कंपनी की भी इक्विटी ले सकते हैं, कल को लिस्ट हो गए तो रिलायंस की ले सकते हैं, TCS की ले सकते हैं, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी. But you own it. But you own something which grows without your interruption. तो रिलायंस का शेयर 800 था, आज 3200 हो गया. आपने क्या किया उसमें? वो तो बेचारे मुकेश अंबानी लगे हुए हैं काम पे या उनकी पूरी टीम लगी हुई है काम पे. ठीक है, आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल X पे वैल्यूड है, वो 10X हो गई. तो इसमें मैंने क्या किया? इफ आई हैव इन्वेस्टेड समथिंग, वो तो करिश्मा मेहनत कर रही है तो उसको 10X कर दिया उसने. सो समबडी एल्स वर्किंग फॉर यू, growing your wealth is the only way to make wealth. अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सैलरी बढ़ा के वेल्दी हो जाओगे तो वो नहीं होने वाला. You have to have a diversified portfolio. You have to be an owner. And an owner. पहले ओनर बन जाओ किसी भी चीज के, या किसी और की इक्विटी के या अपनी पर्सनल कोई कंपनी बना के उस इक्विटी के.
Let's talk about sovereign gold bonds. हाँ काफ़ी सारा डिबेट चलता है राइट कि ये क्या है, हाउ इज इट विथ रियल गोल्ड, व्हाट इज द कंपैरिजन, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सी इसका ना पहले लेट्स गो बैक अ लिटिल ऑन गोल्ड. Gold has been like the biggest fetish of our Indian families. 25,000 tons of household gold in India. Wow. Beats China and US. So, अब एक प्रॉब्लम गोल्ड के साथ ये है कि गोल्ड ऑलवेज गेट्स इम्पोर्टेड. गोल्ड इज नॉट मेड इन इंडिया. तो जब वो इम्पोर्ट होता है तो आरबीआई पे प्रेशर आता है कि भाई हमारा तो पैसा बाहर जा रहा है, करेंसी वो हो रही है, फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं. अच्छा, बिकॉज यू इम्पोर्टेड, स्मगलिंग होती है. तो 80% of gold in India is non-smuggled, but 20% is smuggled. And you're talking about what, 800 to 900 tons of gold consumption every year in India. 800 tons, 8 लाख किलो, 8 लाख किलो. अब उसमें से 20% स्मगल हो रहा है. तो स्मगल होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, ड्यूटीज़ का लॉस हो रहा है. सो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए इस बार उन्होंने ड्यूटीज़ को कम किया थोड़ा सा, कि द कॉस्ट ऑफ स्मगलिंग शुड बी हायर देन द ड्यूटी. करेक्ट. सो देन इट डेटर्स द स्मगलिंग. तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा, वो तो 1-2 साल बाद पता चलेगा. बट सो व्हेन दिस स्कीम वाज मेड, पीपल सी, होता क्या है कि गोल्ड इज द मोस्ट अनप्रोडक्टिव एसेट. आपने आज खरीद लिया, लॉकर में रख दिया, हो गया, खत्म. इट इज नो मोर इन द मार्केट. Like if you lend to a bank or you put money in a bank, bank takes that money, gives it to somebody. It's circular. It's circulating, rolling कहते हैं जैसे. पर गोल्ड रोल नहीं कर रहा है. तो गवर्नमेंट बोला यार क्या करें, मतलब एक तो यहाँ मार पड़ रही है, गोल्ड घर पे बैठा हुआ है, अनप्रोडक्टिव एसेट हो गया. तो उसको पूरे को डील करने के लिए उन्होंने एक स्कीम निकाली. उन्होंने कहा ओके, वी विल इशू अ बॉन्ड बिकॉज गवर्नमेंट नीड्स टू रेज मनी. गवर्नमेंट को अपना पैसा चाहिए रहता है. हम गए, संजय आप आओ और आप एक गोल्ड बॉन्ड खरीद लो हमसे, ठीक है. गोल्ड बॉन्ड जो उस दिन का सोने का रेट है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा. सो लेट्स से गोल्ड इज एट 70,000, सो आई विल गेट इट एट 70,000. सेकंड पॉइंट, बिकॉज इफ यू कीप गोल्ड एट होम you have 3 costs which you have to bear. One is GST because आपने गोल्ड लिया, second is lockup charges, and third is you don't get any interest. Correct. तो ये तीनों कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट हो गई, ठीक है. तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में नो GST, नो लॉकअप चार्जेस बिकॉज देयर इज नो फिजिकल गोल्ड, एंड वी विल गिव यू 2.5% इंटरेस्ट पर एनम. वाओ. ठीक, तो वी हैव कवर्ड यू ऑन 3 काउंट्स. ठीक है. नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज कि कल को गोल्ड बढ़ गया तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. व्हेनेवर यू रिडीम, you will be redeemed at the price of the gold at that time. So they really covered all aspects. As all aspects. Fourth, we will not tax you. Only on the interest we will tax you. ठीक है. तो ये बेसिकली आपका टोटल बन गया. Now government when it borrows ना, तो ऐसा नहीं होता कि जैसे आप बैंक में गए ATM से पैसा निकाल लिया, तो गवर्नमेंट कहती है यार थोड़ा 5 साल का तो हमारे साथ रिश्ता रखो. 5 साल हम आपका लॉक इन रखेंगे, 5 साल तक आप इस गोल्ड बॉन्ड को विड्रॉ नहीं कर सकते. 5 साल बाद आप कर सकते हो. और टोटल टेन्योर इस गोल्ड बॉन्ड का अराउंड 8 ईयर्स होता है. Okay. तो 8 साल में जो पहला ट्रांच था गोल्ड बॉन्ड का, वो आया था 2016 में, which got redeemed in 2024, and it made a CAGR of approximately 12.5%, which I think is a reasonably good It's reasonably number. good, yeah. Second thing you have to understand, गोल्ड में ना, गोल्ड का अप्रिसिएशन उतना नहीं हुआ है, करेंसी का डेप्रिसिएशन बहुत हुआ है. So gold has not gone from 25,000 to 75,000. Gold must have gone from let's say 25,000 to 55,000. जो बचा हुआ 20,000 है ना, वो इसलिए क्योंकि 2016 में रुपी was at 60 odd rupees and dollar was at 60 odd rupees and now it's 83, 84. And as I said, most of the gold is imported. Almost 100% of the gold is imported. तो इसीलिए हमारे को करेंसी डिवैल्यूएशन का बेनिफिट मिला है. Correct. The width is larger. तो डबल बेनिफिट है आपको. गोल्ड के प्राइस का इंक्रीज है और करेंसी के डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है. तो इसलिए गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्फ्लेशन हेज. गोल्ड इज अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट एक्सट्रीम सिचुएशंस, एंड इट गिव्स यू अ कंफर्ट कि यार अपने पास सोना पड़ा हुआ है, कुछ भी हो गया तो बेच के ले बेच देंगे. ठीक है. ओके. या ओनली डिसएडवांटेज आई सी इज कि 5 साल का लॉक इन है, तो यू कैन गो लॉकर से निकाला और गोल्ड बेचते हैं. देखिए वो सी व्हेन यू आर फंड प्लानिंग फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज द लिक्विड मनी यू नीड एंड व्हाट इज द इलिक्विड मनी यू हैव. अब लोग रियल एस्टेट में डालना चाहते हैं, ठीक है. कोई भी प्लॉट है, 50 लाख का प्लॉट है, तो 50 लाख आप फंस गया 5 साल के लिए. दैट कैन नॉट कम आउट ऑफ योर लिक्विड मनी. करेक्ट. I'll give you a very good example. There was a company called Subhiksha. Have you heard of them? No. 2008 में this company was one of the largest retailers after Big Bazaar. Okay. So I am Ahmedabad pass out guy, everything good, great. Now what happened was this guy wanted to expand. 2007-8 का time मतलब एकदम heavy expansion का time था, just before the crash. So what he did was he stopped suppliers' money and he took that money and bought land to expand. अब क्या हुआ, 2008 का क्रैश आया, सप्लायर्स को तो पैसा देना है, 3 महीने 4 महीने में देना है, और लैंड फंस गई.
क्योंकि लैंड अब सेल ही नहीं हो रही. 100 रुपए की लैंड का लोग 20 रुपए लगा रहे हैं तो भी सेल नहीं हो रही. इट बिकेम इलिक्विड. मार्केट्स क्रैश्ड वेरी बैडली. द एंटायर कंपनी खत्म. वाई? बिकॉज उसने जो पैसा उसको 3-4 महीने में देना था उसको ऐसे असेट क्लास में डाल दिया जहां पे मिनिमम 5 साल का इन्वेस्टमेंट है. तो बेसिकली उसने इस पैसे के साथ पंटरबाजी की, जैसे हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि पंटरबाजी कर दी. गैम्बल्ड विद दैट मनी. तो आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर आपने गोल्ड बॉन्ड लेना है तो ये वो पैसा होना चाहिए जो आप 5 साल के लिए जस्ट फॉरगेट इट. वो है नहीं आपके पास. है नहीं. तो ये आपको, दिस इज नॉट मैं नहीं कहूंगा इसको कि ये इसका ड्रॉबैक है. ये उसका एंट्री क्राइटेरिया है. इज द एंट्री क्राइटेरिया फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं. आई हैव रेड एटॉमिक हैबिट्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन Yeah, कंपाउंडिंग दैट आई हैव रेड, एंड इट वर्क्स राइट. अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पर हर रोज़ काम करते हो, यू विल सी द लॉन्ग टर्म. Yep. 1 दिन या 2 दिन में नहीं दिखता. Right. कैन यू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग टू दोज हु आर वाचिंग कि कैसे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करके जो थोड़ा थोड़ा you kind of maybe increase slowly, steadily towards actually being financially independent or reaching your goal. How does compounding play a role? लाइव एग्जाम्पल देता हूँ. एग्जैक्ट, मतलब नंबर बाय नंबर, माई ओन म्यूचुअल फंड. Okay. So I started one of these funds in small cap category in September of 2016. That's 8 years back. आज September 2024 है. So it's 96 months I've been investing in that fund. I started with 30,000 का SIP. 30,000 रुपये उस फंड में जाता था. Now this story is amazing. Okay, when I started from September 2016 से लेके March 2020 तक, I was buying every month. My 30,000. average 30,000. My average price after this 3.5 years was equal to the price of the fund at that time. That means 3.5 साल निकल गए और मेरा रिटर्न्स कितना है? 0. Because my average price is equal to the today's price. ठीक है. अब इतने टाइम तक ना करिश्मा सबकी हवा निकल जाती है और सब बाय बाय बोल के चले जाते हैं मार्केट को कि बस 3.5 साल निकल गए, आई मेड 0 रिटर्न्स. ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट माई गुरु जी इज वॉरेन बफेट, तो हम तो उनकी सुन लेते हैं. Then came the real test. COVID. Dip by 25% in 2 months. तो my average, मेरे को लगता है किसी ने बोल दिया. Sorry, sir. It's okay. मतलब I think the story worked. I think that's the major part. Even I heard that. I was like, Sorry. No, it's okay. अच्छा लगा मुझे. It is a positive feedback. BTS. Oh God. okay. So coming. Ritesh, कोई और question है? Yeah, I have one question. So coming back, तो मार्च आया. Within 2 months, I'm down 25%. अच्छा, उस टाइम में एक कहावत बहुत चली कि the women of the house are fire buying and the men of the house are fire selling. क्योंकि फीमेल्स थॉट कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, आटा दाल चावल अंडा ब्रेड सब स्टोर्स पे भाग गए, और मेन थॉट कि अब मार्केट अब बचेगी नहीं तो अपना जो स्टॉक है वो खाली करो. तो मैंने नहीं किया. आई केप्ट ऑन. करिश्मा विल बी अमेज्ड टू नो 96 months, around about 28-29 lakhs of investment, because 30,000 every month. Today that fund is valued at 82 lakhs. Wow. That's 3 times. That's mad. And if I take the CAGR, IRR, जो भी आप कहना चाहो, it's around 27%. Wow. That's because I kept through that journey. तो अब ये चीज़ जब मैं सामने वाले को बताता हूँ तो मुझे लगता है वहाँ से कुछ कन्विक्शन आना चाहिए. अगर वो इतना, देखिए 7-8 साल हो गया, ठीक है, इट्स अ वेटिंग पीरियड एंड इट्स अ टेस्ट. जैसे वो 25% ड्रॉप हुआ ना, उसके बाद आपका रियल टेस्ट चालू होता है. बट जस्ट बी एट इट एंड हैव दैट फेथ इन द सिस्टम. और मार्केट तो फ्लक्चुएट होते रहेगा. Correct. एक और बार आएगा क्रैश, मेरे को पता है आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, तो ये चलता रहेगा. अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. The biggest wealth compounder of our generation, and I think generations to come, has been Warren Buffett. He's investing for the last 81 years. ठीक है, लोगों के लाइफ स्पैन नहीं होता इतना. तो in 1965, I think he listed his company, Berkshire Hathaway. Yeah. And he has compounded it by 19.8% per annum for the last 60 years. अब अगर आज मैं ये किसी को बोल दूँ ना, ट्रेडर को ये रिटर्न की साल का 20% बनाया, तो मैं तो महीने का बना दूंगा, नो ऐसा. But look at the magic. If we would have invested 10,000 rupees one time in 1965, आज उसकी वैल्यू 45 crore से ज़्यादा होती. So compound interest
सब लोग समझते हैं, बात करते हैं, बट द रियल प्लेयर इन द गेम इज टाइम. टाइम. इट्स नॉट द रिटर्न्स. और टाइम तो बीतेगा ही. बिल्कुल. एक जैनेटर थे, ये स्टोरी बहुत फेमस हुई इन यूएस, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग. जैनेटर तो साफ सफाई करने वाला, सिंपल कर्मचारी. तो उसने 13-14 साल की उम्र में काम करना चालू किया, एंड स्टार्टेड पुटिंग सम मनी इन S&P 500, विच इज़ अ पैसिव फंड ऑफ यूएस. जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 है, वहाँ पे S&P 500 है. डालता गया. At 65, he had $8 million in that account. $8 million. Wow. So that's the power of compounding. अब he had two options. He could have taken that money, gone to the lottery वाला जगह कि हर महीने चलो गैम्बल करता हूँ, मेरे पास ये $10 या $50 या $100 बचता है, चलो जाके गैम्बल करता हूँ. वर्सेस ही सेड कि नहीं भैया, गैम्बलिंग वैम्बलिंग छोड़, ये S&P 500 में डाल दे. Invest. In long term, the markets will beat any individual's own returns. Correct. The markets are greater than you. Yes. The individuals. In US, out of 100 funds, only 4 funds have been able to beat market consistently over the period of 5 years. सिर्फ 4. अब मैं ढूंढूं कैसे वो 4? Am I God? तो better to be on the other side ना कि चलो markets को ही दे दो. हाँ, वो अपने आप ही करते रहेंगे. Correct. So that's the power of compounding. Absolutely. Okay. Let's talk about planning for a comfortable retirement. हाँ. Again, very popular concept, right? Fire. क्योंकि लोगों को अर्ली रिटायरमेंट चाहिए. मुझे दुनिया देखनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पहाड़ में घर बनाना है. There's lots of dreams, lots of aspirations. कि people are understanding कि you know there's a lot to live for. So what are some of the strategies that people can apply कि वो एक comfortable retirement के लिए plan कर सके while keeping their current finances comfortable? देखिए, वो जैनेटर ने यही किया. बहुत सिंपल काम किया, पैसा डालता गया और उसके रिटर्न्स बन गए. अगर किसी को देखिए, रिटायरमेंट जो वर्ड है ना, वो आई थिंक हमारे यहाँ थोड़ा सा गलत इंस्टिल हो रहा है. आई थिंक लेट अस स्टिक टू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट ओनली, बिकॉज रिटायर कोई हो नहीं सकता. मैंने भी सोचा था हो जाऊंगा जब मैं 38-39 का हुआ. चल पैसे तो बन गए, अब करे क्या, अब रोज सुबह उठना है, कुछ तो करना है. तो दैट मीन्स यू नीड टू हैव सम पैशन विच यू कैन फॉलो आफ्टर यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. बिकॉज वंस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना, उसके बाद का मैजिक भी मैं आपको बताऊंगा मजेदार विद नंबर्स. सो व्हेन यू नीड टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू नीड टू हैव अ गुड हैबिट. दैट गुड हैबिट इज एन इन्वेस्टमेंट हैबिट विच इज गोल ओरिएंटेड. सो व्हेन आई स्टार्टेड माई SIP जर्नी, मैंने ये तय कर दिया था कि मैं 40 के बाद नहीं काम करूंगा. ठीक है, ये क्लियर था. सो दैट हैड अ विजन कि नहीं करूंगा मैं काम. मैंने SIP स्टार्ट किया 2008 में, उसको चलाया और 2013-14 में मैंने उसको ब्रेक किया और 15 के आसपास फिर से स्टार्ट कर दिया. एंड देन आई रैम्प्ड इट अप वेरी हेवीली, ऑलमोस्ट एट अ कैगर ऑफ 20% एनुअली. मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई. सो जस्ट टू गिव यू इन प्रिटेक्स्ट दैट आई स्टार्टेड विद SIP ऑफ 20,000 एंड आई नाउ डू 3.5 lakhs per month. तो इस लेवल पे मैंने पिछले 9-10 साल में अपने SIP को बढ़ाया. और वो मैं इसलिए बढ़ा पाया बिकॉज मैंने अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाया. Correct. अगर मेरी एक्टिव इनकम नहीं बढ़ती तो कहाँ से मैं 3.5 लाख रुपए डालता. मेरी एक्टिव इनकम ही अगर 2 लाख रह जाती तो I would have been stuck at 40, 50, 60, 70,000 rupees. So one thing was to work on active income also. So I was very clear कि 40 की उम्र के बाद काम नहीं करना और 40 तक 5 करोड़ रुपए चाहिए. ठीक है, और 50 तक 25 करोड़ चाहिए. तो ये बहुत क्लियर था. बट 40 वॉज रिटायरमेंट, 25 करोड़ इज लाइक वैनिटी. देखना एक बार अकाउंट में 25 करोड़ दिखता कैसा है. ठीक है, तो मार्केट्स वेंट वेल. आई गॉट रिटायर्ड एट 38-39. Wow. ठीक है, दैट वॉज मार्केट्स गिफ्ट टू मी, बट आई स्टक विद इट. मार्केट्स खराब होती ना करिश्मा, तो मैं 40 की जगह 42 में रिटायर हो जाता. उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो दैट 2 years विंडो, लेट्स से 5-7% विंडो यू हैव टू गिव फॉर योर रिटायरमेंट. इट इज नॉट हैपन कि आपने तय किया आपका बर्थडे लेट्स से मेरा 12 अगस्त को है तो 12 अगस्त को ही मैं रिटायर होऊंगा. ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू गिव दैट स्पेस टू द And there is मार्केट. variation and variability. Yes, तो वो उतना देना पड़ेगा. बट इफ यू आर लकी you'll get retired a year or two early, and if you're not very lucky you'll get retired maybe a year or two later. So पहले आप अपना जैसे फायर नंबर कहते हैं आजकल, वो फायर नंबर डिटरमाइन कर लो which is your at that time expenses into 20 to 25 times अगर होगा तो आप comfortable हो जाओगे. Correct. ठीक है, so let's say your expenses today are 50,000, you want to retire after 20 years, every 10 year your expenses doubles, तो 2 लाख रुपए का हो गया. 2 लाख is 24 times, let's say around about 6.5 crores आपको चाहिए. तो अब आप उसका बैक वर्किंग करोगे, 6.5 crores आएगा कैसे. लेट मी टेल यू सिंपल मैजिक कि अगर आप रैंप अप भी नहीं करते तो 50-60 हज़ार रुपए की SIP से आप 6.25 करोड़ रुपए बना सकते हो 20 साल में. तो अगर एक व्यक्ति आज 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहा है तो ही कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय द एज ऑफ लेट्स से another in next whatever 20 years. Let's say he's 28, he'll retire by 48. Yeah. तो easy है, but you have to be at it. Just at it. Okay. Let's dig deeper into emergency fund.
काफ़ी सारे क्वेश्चंस है राइट वाइल सेटिंग की राइट अमाउंट भी क्या है फॉर एन इमरजेंसी फंड, हाउ डू आई डिटर्मिन दैट? नाउ ऑफ कोर्स सब लोगों की सैलरी अलग होगी, सब लोगों के एक्सपेंसेस अलग होंगे, बट एक क्या कोई स्ट्रैटेजी है कि इसको आप ब्लाइंडली रखो एज अ बेंचमार्क कि इतना इमरजेंसी फंड तो होना ही है? So, okay, I'll take a very, example on this. That there are 3 types of planes. One is a Cessna, छोटू सा. One is, let's say, A320, and one is A380. Now, a Cessna requires maybe a kilometer of a runway. छोटू सा है, उतरेगा, रुक जाएगा. A320 may require a 2 kilometer runway. A380 requires a 3.5 kilometer runway because it has more load. तो तीनों का लोड फैक्टर जो है वो डिफाइन करता है कि रनवे कितना बड़ा होना चाहिए. सेम इज विद यू. इफ योर लोड फैक्टर इज यू आर अलोन, दैट मीन्स यू आर अ सेस्ना, यू डोंट नीड अ वेरी लार्ज रनवे, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. फिर आप अनप्रोडक्टिव डाल रहे हो पैसा. तो अगर आप सेस्ना हो, इंडिविजुअल हो, आप पे बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो वट एवर इज़ योर कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशंस, हम इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कीपिंग द लाइट्स ऑन, दैट मल्टीप्लाइड बाय 6 शुड बी योर इमरजेंसी फंड. So let's say I am an individual drawing a salary of 40,000. My expenses are 25,000. Let's give or take. So 25 into 6, 1.5 lakh, 1.5 lakh रुपए का मेरे पास एक emergency fund होना चाहिए. Now let's say I'm A320. I'm married. I don't have a kid. Don't have immediate liabilities. But I have a family, wife है. तो at least 9 to 10 months of my expenses should be with me. Because now I'm A320. I require a bigger runway. कल को मेरा जॉब चला गया, इनकम खत्म हो गई, कुछ भी हो गया, कोविड आ गया. So at that time, I need to sustain for 9-10 months because we are 2 of us now. And now I'm at 380. I'm with my wife, with my kids. Then I am requiring at least 12 to 15 months of emergency funds. Because my runway has to be bigger. कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे को 3-3.5 किलोमीटर का रनवे चाहिए to stop my plane. नहीं तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा. So this is very, very simple. Whatever is your cost, 6, 10, let's say 15. आप ऐसा रख लो. सेकेंड थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में हर वो नंबर जो आपको फ्रीडम देता है वो आपकी इनकम से लिंक नहीं होता है, वो आपकी एक्सपेंसेस से लिंक्ड होता है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट इज़ अबाउट हाउ मच यू सेव. अगर आप एक्सपेंसेस राइट कर पाए तो आपकी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो प्रीपोन हो जाएगा. दैट्स इट. अंडरस्टूड. फैंटास्टिक. ओके, नाउ वी हैव अ सेक्शन कॉल्ड बस्टिंग द मिथ्स. ओके, तो मैं कुछ मिथ्स बोलूँगी आपको बताना है कि इज इट ट्रू और इज इट नॉट. You don't need an emergency fund if you have an insurance and a steady income. Myth. Myth? Myth. Okay. You can't save for retirement until you're in your 40s or 50s. Bigger myth. Taking out a loan will ruin your credit score permanently. Taking a loan will ruin your credit score permanently. Not repaying loan on time will ruin your credit score permanently. Okay. Real estate always increases in value over time. True, but it has any asset has long gestations of times when they don't give any form of returns. Debt is always bad. No, debt can be very productive also. Okay. Now we have a section called Ask the Expert. तो हम आपको life scenario दे रहे हैं. ठीक है. And आपको उनको advice देनी है. ठीक है. I'm in my 30s with a significant amount of debt and planning to start a family. How can I manage my current debts while setting aside funds for future expenses and goals? So question is कि मैं 30s में हूँ, मेरे पे 30 लाख का उधार है और मुझे अपनी फैमिली भी स्टार्ट करनी है which will require some capital. What should I do? So first things first, जब भी आप पे उधार हो, जब भी हो, चाहे आप 30s 40s जब भी हो, put your उधार in descending order of interest rate. Highest ऊपर, lowest नीचे. आज तक मैंने देखा है लोगों के पास उधार होता है पर उनको पता नहीं होता कि उधार कितने इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है. Second thing, start knocking off your most expensive उधार a little more. ठीक है. So start knocking that off because वो आपका जो सेविंग होगा वो इतना सब्सटैंशियल हो जाएगा ओवर टाइम कि आपके पास एक अच्छा कैपिटल बिल्ड हो जाएगा. सेकेंड, नाउ बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एंटर इन टू अ फैमिली मोड, यू नीड टू हैव द राइट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंसेस. करेक्ट. अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ नहीं है, लाइफ नहीं है, तो अब आप बहुत बड़ी परेशानी में आ जाओगे बिकॉज नाउ यू आर टेकिंग लाइबिलिटीज ऑन यू. सो यू नीड टू हैव द राइट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंसेस. थर्ड इज प्लीज फोकस ऑन नाउ स्टार्ट डेवलपिंग पैरेलल इनकम. ये बहुत ज़रूरी है. See, every person, I believe that they should try to work on having double income because Warren Buffett कहते हैं if you have only one source of income, you are one step away from poverty. So to avoid that situation, try to have double income. Try to do something on the weekends. Try to build. जैसे मैंने teaching करता था, तो I used to make some money out of teaching. So always try to have some extra income because कल को ये problem आई तो at least you have something there. To go back. Okay.
मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से कई बड़े परचेसेस किए हैं एंड नाउ आई एम स्ट्रगलिंग टू कीप अप. व्हाट स्टेप कैन आई टेक टू कंसोलिडेट माय डेट एंड गेट बैक ऑन ट्रैक? सी क्रेडिट कार्ड अगर आपका आपने सी क्रेडिट कार्ड में पहले तो आपको बैलेंस ड्यू और ये सब नहीं, मतलब ये नहीं देना चाहिए, क्या कहते हैं, मिनिमम अमाउंट ड्यू. यू नीड टू गिव द फुल अमाउंट. नाउ सिंस यू डोंट हैव दैट मनी, सो फर्स्ट स्टार्ट अरेंजिंग फॉर दैट मनी. मे बी सम फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन गिव यू दैट लोन which you can repay over time. Second is, if the friends and family are not giving you, take some personal loan, which is at a lower interest rate, because credit card interest rates are almost 30 to 36%. A personal loan would be at a rate of 14 to 16%. तो at least you get that almost 16% का सालाना का ब्याज आप बचा सकते हो. Correct. तो आप फटाक से पहले तो या तो FNF कर लो, फ्रेंड्स एंड फैमिली कर लो. अगर फ्रेंड्स फैमिली नहीं हो रहा है तो इमीडिएट पर्सनल लोन ले लो. पर्सनल लोन लेके इमीडिएटली इनको नॉक ऑफ करो और उस पर्सनल लोन को इतना लंबा कर दो कि आपको जो उसकी EMI देनी है वो बॉदर ना करे. सो कट योर कैश फ्लो. गेम इज अबाउट कैश फ्लो. आप कैश फ्लो को अगर मैनेज कर पाए तो आप कितना भी लंबा चल सकते हो. देन यू गेट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर इनकम. बट इफ योर कैश फ्लो इज सच कि मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि लेट्स से समबडी इज बॉडी बिल्डर, एकदम मस्त बॉडी है उसकी, पर उसको सांस आना बंद हो गया तो वो मर जाएगा. Correct. तो इसी तरीके से आपका कितना भी अच्छा सब कुछ है, एसेट्स है, सब कुछ है, पर इफ यू डोंट हैव कैश फ्लो यू आर गॉन. Okay. Fantastic. It brings us to the end, Sanjay. I have learned a lot and across the room आपको पता ही चला होगा काफ़ी सारे interesting reactions थे. So we learned a lot and I'm sure people are going to drive a lot of value. So thank you so much for doing this. And I think that this is going to be part one of many, many to come. Thank you so much, Karishma. And one thing which I just want to conclude with from my side is that building wealth is a journey. Yeah. It is not going to happen overnight. But once you reach that point, after that you have bought your freedom. Something which you traded for all this while is yours. Yeah. मैं पहले टाइम को ट्रेड कर रहा था, आज वो मेरा हो गया है. Correct. ठीक है. And it is the most finite resource anybody has. So build it like a journey. Enjoy doing this, and you will definitely become financially independent. How lovely. Thank you so much, Sanjay, and looking forward to having you back on the show again. Thank you. Thank you, Karishma. Thank you for being the best community, and we'll see you in the next one.